الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تؤمن خان. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمين. Buddha says in the Buddhism, "Oh Nanda, I am not first Buddha and I am not last Buddha, but a Buddha will come after mine. His name will be Maitreya. His name will be Amitabh Buddhism." سکھوں کی ایک کتاب کا نام ہے گرو گرنتھ. گرو گرنتھ کے صفحہ نمبر 485 پر گرو گرنتھ میں ایک کرتا بنا ہے اور اس کرتے کے دامن پر آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے اور گرو نانک کے کرتے کے داہنی آستین پر لا الہ الا اللہ اور بائیں آستین پر محمد الرسول اللہ یہ کلمہ لکھا ہوا ہے، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی یا یہ کہیے کہ آپ کی صداقت اور رسالت ثابت ہو جاتی. جین مذہب کے اندر کتاب ہے شاستر نامی کتاب کے اندر ارہن موجود ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں پکش داتا، شفاعت کرنے والا. اللہ کے نبی شفیع المذنبین تھے، لہذا شک کی کوئی گنجائش نہیں. ذرا اور قریب آئیے ہندوازم کی طرف. ہندوازم میں شری کرشن جی، جن کے بارے میں شریمد بھاگوت گیتا کہتی ہے کہ وہ دوآپر یگ میں پیدا ہوئے، اور بھاگوت گیتا نکٹیشور پریس بامبے کہتی ہے کہ وہ تریتا یگ میں پیدا ہوئے. ایک نے دوآپر یگ، ایک نے تریتا یگ. مگر رام چندر جی اور کرشن جی کے بارے میں بڑا اختلاف ہے کہ کون دوآپر یگ میں پیدا ہوا اور کون تریتا یگ میں. شری کرشن کی جو تعلیم ہے وہ تعلیم بہت حد تک مذہب اسلام سے ملتی جلتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شری کرشن کوئی نبی تھے، اور نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شری کرشن کوئی آسمانی کتاب لے کر آئے تھے. غلط فہمی نہ ہو آپ کو. شریمد بھاگوت گیتا ادھیائے نمبر 4 حوالے کا ذمہ دار میں.
देखिए लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वेद व्यास जी के 18 पुराणों में एक पुराण का नाम है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण के अंदर आप देखिए, अश्वमाशुमारूहा देवदत्ते जगतपति आसीना साधुमनम षडेश्वर्य गुणान्विता चतुर्विभ्रात्रिमिदेव कृष्यामि क्लिच्छं भवन्तो बांधव देवा स्वाशिना उत्तरिष्यथा। ये चीजें बतौर सबूत के आपके सामने रख दी, बहुत जल्द इसका खुलासा आपके सामने आ जाएगा। अब चलिए जरा असल चीज पर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक ऐतराज लगाया है अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, और उन्होंने अक्सर जुमलों में लिखा है कि मोहम्मद लिखता है, मोहम्मद फरमाता है, मोहम्मद कहता है। लेकिन मैं अपनी तकरीर में ये नहीं कहूँगा कि स्वामी जी लिखता है, फरमाता है, कहता है, बल्कि मैं बड़े अदब से कहूँगा स्वामी जी लिखते हैं, फरमाते हैं, कहते हैं, इसलिए कि हमारे मजहब की यही तालीम है कि तुम दूसरों के या दूसरे मजहब के लोगों के, उनके बुजुर्गों को अदब और एहतराम के साथ बुलाओ। स्वामी जी ने लिखा है कि कुरान का ये कहना कि सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं, गलत है। इससे ये पता चलता है कि ये कलाम अल्लाह का कलाम नहीं। अगर ये कलाम अल्लाह का कलाम होता तो वो ये नहीं कहता कि सारी तारीफें अल्लाह के लिए, बल्कि वो ये कहता कि ऐ इंसानों तुम ऐसा कहो, और अल्लाह ही ये कहे कि सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही रहम करने वाला इंतहाई मेहरबान है। अल्लाह ही कहे कि शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से, ये चीज समझ में नहीं आती। हालांकि आप ऋग्वेद खोलें, हम वेद की बात कर रहे हैं। अगर कोई पंडित जी यहाँ मौजूद हों तो वो जरा स्टेज के निकट आ जाएं, करीब आ जाएं, ताकि मानने या मनवाने में आसानी हो सके और समझाने और समझने में आसानी हो सके। ऋग्वेद कुरान को आप खोलें तो सबसे पहले आप कुरान को खोलते ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। यानी जैसे ही आप कुरान को खोलें उसके फर्स्ट पेज पर आपको यही इबारत मिलेगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही ऋग्वेद अगर आप खोलें, पहला मंत्र, पहला अध्याय, पहला कांड, पहला मंडल, सब कुछ पहला खोलते ही उसके अंदर जो चीज मिलेगी वो होगी अग्नि नीले। सारी प्रशंसा अग्नि के लिए है, और अग्नि की असल है अग्रणी। अग्रणी का माना सबसे पहले, और अल्लाह ही सबसे पहले है। और यही लफ्ज कुरान में भी आया हुआ अव्वल, वो सबसे पहले। अग्रणी या अग्नि या अल्लाह जो सबसे पहले, सारी प्रशंसा, संपूर्ण प्रशंसाएं उसी के लिए हैं, सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। तो क्या ये सवाल ऋग्वेद के ऊपर किया जा सकता है या नहीं कि तुम कहते हो कि ब्रह्मा ने इसको नाजिल किया या परमेश्वर ने इसको नाजिल किया, और परमेश्वर ही ये कह रहा है कि सारी प्रशंसाएं ब्रह्मा के लिए हैं, अल्लाह के लिए हैं। और फिर स्वामी जी का ये एतराज लगाना कि कुरान का ये उसलूब गलत है, तो फिर तुम्हारी किताब का उसलूब कौन सा सही है? एतराज तपा हो जाता है। रूए जमीन के ऊपर आदमी जिस हिस्से पे रह रहा है, सुन लो, वो पूरी दुनिया का 1/4 हिस्सा खुश्की है, और इससे 3 गुना ज्यादा पानी। यानी खुश्की का हिस्सा कम और पानी की तादाद या पानी का हिस्सा ज्यादा। आदमी खुश्की 4 हिस्से कर दो पूरी दुनिया के, 1 हिस्सा खुश्की, 3 हिस्सा पानी। 1 हिस्सा खुश्की का यह हाल है कि हम इंसानों को शुमार नहीं कर पाते, पानी का आलम क्या होगा। लेकिन इतनी कसीर तादाद में होते हुए पानी के, मैं ये कह रहा हूं, कुरान का दावा है कि अगर सारे समंदर को, सारी दुनिया के पानी को जो खुश्की से 3 गुना बढ़कर है, अगर उसको स्याही बना डाला जाए, रोशनाई बना दिया जाए, और ध्रुव जमीन पर जितने भी दरख्त हैं उन दरख्तों की अगर कलमें बना डाली जाएं, रोए जमीन पर जितने भी कागज है अगर उनकी कापियां बना दी जाएं, और फिर उन कापियों पर उस कलम से, उस रोशनाई के जरिए अगर अल्लाह की तारीफ, तौसीफ, किबरियाई, बड़ाई बयान की जाए या लिखी जाए, तो काबे के रब की कसम है स्याही सूख जाएगी, कलमें घिस जाएंगी, कापियां भर जाएंगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ, तौसीफ, किबरियाई, बड़ाई न तो खत्म हो सकती है, न
जो है कलमे तो खिल सकती है, लेकिन तारीफ और तौसीफ में कोई कमी वाकई नहीं जो है नहीं आ सकती। इस चीज को अपने जहन में बिठा लीजिए। ये दावत जो मजहब लेकर आया उसका नाम है मजहब इस्लाम, वरना हिंदू मजहब के अंदर तो यहां तक है कि परमेश्वर ने जब इस कायनात की सृष्टि सौंपी तो ब्रह्मा को पैदा करने का काम सौंप दिया, विष्णु को पालने का काम सौंप दिया, और शिव जी का काम क्या है? मौत के घाट उतारने का। वो मौत के घाट उतारते हैं, और यही वजह है कि एक मर्तबा, हवाले का जिम्मेदार मैं हूं, महाभारत प्रतिशत प्रो का 8वां खंड उठाकर देखें, आप ये देखेंगे ये इबारत उसमें लिखी होगी कि एक मर्तबा पार्वती जी नहा रही थी तो उनके बदन के मैल से, विष्णु शिव की पत्नी का नाम, महादेव की पत्नी का नाम है पार्वती, पार्वती जी नहा रही थी, उनके बदन से जो मैल और कुचैल निकल रहा था, उसी मैल से, उसी गंदगी से शिव ने, पार्वती ने एक लड़का बनाया और उस लड़के का नाम रखा गणेश, और उसको दरवाजे पे खड़ा कर दिया। क्या है मेरे बेटे, तू यहां खड़े हो जा, मैं नहा रही हूं, कोई भी आदमी अंदर ना आने पाए। शिव जी यानी महादेव जिनका नाम है वो बाहर गए हुए थे, अंदर जब आने लगे तो गणेश जी ने रोका कि मेरी मां नहा रही है, तुम अंदर नहीं जा सकते। तो उस वक्त शिव जी बोले, महादेव जी बोले कि अरे कौन तेरी मां? का पार्वती जी। का पार्वती मेरी बीवी है, तू कह रहा वो मेरी मां है, मेरा तो कोई बेटा ही नहीं। बताइए, शिव जी को खुदा का दर्जा हासिल है और अभी ये नहीं मालूम कि मेरी पत्नी ने बेटा बनाया। ऐसा इंसान जो इल्म से इतना तोड़ा हो, क्या वो खुदाई दावा लेकर उड़ सकता है, या वो खुदा बन सकता है, या खुदा का दावेदार हो सकता है? नहीं। He has no God, he has no father, he has no son। ये बाइबल की इबारत है कि ना अल्लाह का कोई बेटा है, ना बाप है, ना माँ है, ना बहन है, ना कुछ नहीं। और एक तरफ वही बाइबल ये भी कह रही हो कि आई विल प्रे द फादर, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा। इसका कोई शुमार किया जा सकता है कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा हो कि उसका कोई बाप है, ना बेटा है, ना भाई है, ना कुछ कोई है ही नहीं, और एक तरफ ईसा ये कह रहे हो कि अल्लाह मेरे बाप, मैं तुझसे दुआ कर रहा हूं। गौर कीजिए, एक तरफ बाप का इनकार, माँ का इनकार, बेटे का इनकार, बहन का इनकार, और एक तरफ बाप कहा भी जा रहा हो, कोई शुमार नहीं किया जा सकता। वो एक अलग बात है कि असली में डालना मिलाने वाले बहुत इस दुनिया में पैदा हुए, लेकिन यहां पर मैं आपके सामने चंद बुनियादी बातें रख दूं। गणेश जी ने कहा कि बहरहाल कुछ भी सही मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। शिव जी को गुस्सा आया, मारने का काम तो था ही इनका, निकाली तलवार और गणेश जी की गर्दन काट डाली, गर्दन दूर फेंक दी, मर गए। अब पार्वती जी ने जिद की कि नहीं, मैंने बड़ी मेहनत से अपना बेटा बनाया था, तुमने तो उसको मार डाला, ये क्या किया? महाभारत साक्षी है, पढ़ो देखो। कहा नहीं, बेटा बनाना पड़ेगा। एक बीवी अपने पति से जिद कर रही है, और इससे भी बड़ा हाल क्या है कि अपने पति जो खुदा का दर्जा भी रखता है उससे जिद कर रही है। बहरहाल गणेश जी की जिद में पार्वती जी बोली, तो पार्वती जी की जिद में महादेव जी तैयार हो गए, चलो ठीक है। नतीजा ये निकला कि पूरी जमीन खंगाल डाली, कहीं गर्दन नहीं मिली। इसका मतलब ये भी इल्म नहीं था कि गर्दन कहाँ है। बड़ी मुश्किल से एक हाथी जब आ रहा था रास्ते में चलते हुए, जिनको गज कहा गया संस्कृत में, तो जब हाथी आ रहा था तो उसी की गर्दन को काटा, हाथी की जान ली, हाथी की हत्या करके उसकी गर्दन को निकाला, और निकालने के बाद गणेश जी के लगा दिया। और हिंदुस्तान में जो बाइबल पढ़ाई जाती है वो कहती है आज तक कोई ऐसी बाइबल, आज तक कोई ऐसी जो है बायोलॉजी बनाई नहीं हो, ना कोई साइंस ये कह सकती है, ना कोई डॉक्टरी सर्जरी ये कह सकती है कि किसी दूसरे का सर जोड़ा जाए और आदमी जिंदा हो जाए। बाप ने बेटे की गर्दन काटी, ये जिक्र हमारे कुरान में भी मिलता है, ये जिक्र हमारे कुरान में भी आया है। लेकिन बाप ने बेटे की गर्दन को काटा, छुरी चली नहीं, ये जिक्र तो आता है, लेकिन ये कहीं नहीं आया कि गर्दन के कट गई या इब्राहिम ने इस्माइल को ज़िबा कर दिया। ये तो आया है कि बाप ने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई। हो सकता है कि हिंदू भाइयों ने बदल दिया हो, कुछ नाम हो, कुछ का कुछ कर दिया हो, क्योंकि बहुत कुछ इम्कान है, लेकिन बाप ने बेटे की गर्दन पे बहरहाल छुरी चलाई। यहाँ छुरी को चला रहे हैं, बार बार रगड़ के छुरी को रगड़ रहे हैं, और छुरी चलती नहीं है, और यहाँ इजहार ख्याल भी कर रहे हैं, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ओ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अपने बेटे को, अपने लखते जिगर को अपने हाथों से ज़िबा कर रहा हूं, बोल तेरी क्या राय है? फंजुर माज़ा तरा, ओ मेरे बेटे बोल तेरी क्या राय है? बेटे ने क्या कहा, या वत बालमा तुमर सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अय अब्बू जान, आपको जो हुक्म दिया गया आप उस काम को कर डालिए। बाप ने बेटे से कहा, बाप भी तैयार, बेटा भी तैयार, और यहाँ बाप बेटे में झगड़ा हो रहा है। महादेव जी कह रहे हैं कि नहीं, एक पार्वती मेरी पत्नी है, तो मेरा बेटा है ही नहीं। बेटा कहता है हम अंदर नहीं घुसने देंगे। तताबुक कीजिए, कंपेरिजन कीजिए, और आज सत्यता की ढीग हाँकने वालों, सत्य मार्ग ढूंढना चाहते हो तो आओ हम बताएं।
शांति मार्ग तलाश करना चाहते हो तो आओ, जरा इस्लाम की शीतल छाया में आओ, जरा इस्लाम की स्टडी में आओ, जरा इस्लाम के आइडियल और मॉडल में आओ, आपको पता चल जाएगा कि सत्यता क्या है, हकीकत क्या है, जिसको आज लोगों ने छुपा रखा है। इतनी बड़ी पेशेंट, हाथी का सूंड काटा, आज बड़ा इल्जाम लगाते हैं हमारे ऊपर कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। एक मर्तबा दिल्ली जाने का इत्तेफाक हुआ, एक लीडर साहब थे कोई, बोले मौलवी साहब एक बात बताइए। मैंने कहा क्या? आप धरती को माता क्यों नहीं मानते? मैंने कहा बहुत अच्छी बात, और कुछ? कहा गंगा को मैया क्यों नहीं मानते? हमने कहा और कुछ? कहा गाय को माता क्यों नहीं मानते? तकरीर के दौरान सवाल कर रहे हैं, एमएलए का एमपी है। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ये बताओ कि जमीन को आप माँ कहते हो? बोला जी हाँ। मैंने कहा माँ मैं इसलिए नहीं मानता हूं कि वजह तो बताओ कि आप क्यों मानते? का इसलिए कि उससे बहुत से फायदे। हमने कहा क्या फायदा? कि गल्ला उगाती है जमीन, अनाज देती है जमीन। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, आपने 10 किलो गेहूं बोया, आपको आपकी जमीन ने फायदा पहुंचा दिया, मैंने बोया, जमीन ने जलाकर राख कर दिया, आप माता मानते हैं, मैं डायन मानता हूं। बोलिए क्या कहेंगे आप? बोला कि मौलवी साहब ये बात तो समझ में नहीं आई। मैंने कहा माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, और वो माँ हो ही नहीं सकती जो अपने बच्चे से प्यार न करे, मोहब्बत न करे। माँ को अपने बच्चे से बहुत प्रेम होता है, और मैं देखता हूं कि जब जमीन में जलजला आता है, भूकंप आता है, जमीन फटती है और न जाने कितने मासूम बेगुनाहों को अपने अंदर समेट लेती है, धंसा देती है, मार डालती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों उस पर गिर जाती है, दब जाता है, मर जाता है। बताइए वो माँ हो सकती है जो अपने बच्चों के लिए फट जाए और अपने अंदर समेट ले? कहा मौलवी साहब बात तो सही है, लेकिन ये बताइए कि आप गंगा को मैया क्यों नहीं मानते? हमने कहा इसलिए कि जो तैरना जानता हो वो तो बच गया, और जो तैरना न जानता हो वो ओम गणेशाय स्वाहा। जो तैरना नहीं जानता हो डूब के मर रहा है बेचारा, स्वाहा हो गया उसका। हमने कहा वो माँ हो सकती है जो अपने बच्चे से प्यार न करे? का बात तो सही है मेरे साहब। का गंगा गाय को माता क्यों नहीं मानते? मेरे हिंदू भाइयों नाराज मत होना। मैंने कहा आप क्यों मानते हो? का भाई इसलिए मानता हूं कि मेरी गाय तो 8 किलो दूध देती है, बड़ा पवित्र दूध। मैंने कहा 8 किलो दूध देने की बिना पर तुम्हारी माँ बन गई। मेरे घर में एक भैंस बंधी हुई है, वो 16 किलो दूध देती है, तू उसको नानी क्यों नहीं कहता? अगर कोई गाय 8 किलो दूध देने की बिना पर माँ बन सकती है, तो 16 किलो दूध देने की बिना पर भैंस नानी क्यों नहीं बन सकती? और आधा किलो या 1 किलो बकरी दूध देती है, तो वो माँ और वो बहन और बेटी का भी दर्जा ना पाए? इतना बड़ा जुल्म। और सबसे बड़ा जुल्म तो यह कि जो तुम्हारी माँ, ताज्जुब तो यह है कि तुम्हारी माँ बाजारों में घूमती है, तुम्हें इतना भी नसीब नहीं होता कि उसको चड्डी भी पहना दो, बेचारी नंगी जाती है। ये माँ के साथ तौहीन नहीं तो और क्या है? माँ भी कहो और फिर तौहीन भी करो। कहने लगा बस मौलवी साहब रहे तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, मुझे जाने दो यहां से। मैंने कहा सुनो तो आप ये कुछ समझ में आया? क्या मेरे कुल समझ में आ गया, यही पंडित लोग सब लड़ाते उड़ाते हैं। बहरहाल ये कह के आया था स्टेज पर, टेप रिकॉर्ड मौजूद है, कैसेट हमारे झंडा नगर में मौजूद है, उसने जो सवाल किया उसकी कैसेट मौजूद है, यहां तक कि उस वक्त उस तकरीर की वीडियो कैसेट बनी, वीडियो कैसेट में उसका एतराज, उसका जवाब भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों जरा गौर कीजिए कि ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जिनको सत्य मार्ग बताने वाला कोई नहीं। अब खुद अंदाजा लगाओ कि जीव हत्या पर इल्जाम लगाते हो, उनसे पूछो कि अगर सूअर को मारो तब भी जीव हत्या, गाय को मारो तब भी जीव हत्या, और इंसान को मारो तब भी जीव हत्या, फिर ये आप जीव हत्या का इल्जाम लगाते हो, तो ये क्यों नहीं लगाते हो कि मुसलमान जीव हत्या करता है? हमारे महादेव जी ने भी हाथी का सूंड काटा था। बहरहाल ये तफसीली बात है और उसको बताने के लिए काफी वक्त दरकार है। वक्त आएगा तो हम दूसरी बातें आपके सामने रखेंगे। तो कुरान ने एक दुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाज़िल की, दुआ सिखलाई, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। जिस पर एतराज लगाया स्वामी जी ने, अगर हम इस आयत से पहले लफ्ज़ कुल को साइलेंट मान लें तो इस पर कोई एतराज नहीं है। मौलाना सनाउल्लाह मरसली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुआ सिखलाई है, न कि उसने खुद अपने लिए मांगी है, बल्कि अगर आप लफ्ज़ कुल को साइलेंट मान लें तो इबादत तो जो है सारा एतराज खत्म हो जाएगा। मसलन आप ब्रैकेट में, इन ब्रैकेट मान लें, कोई आदमी जब तर्जुमा करता है किसी चीज का तो अपनी तरफ से जब कोई अल्फाज लिखना होता तो ब्रैकेट में कर देता है। उसी तरीके से कुरान के अंदर तो इसको ना बढ़ाएं, लेकिन इन ब्रैकेट, सपोज दैट, इन ब्रैकेट यानी फर्ज कर लो ब्रैकेट के अंदर उसको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आए, कुल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आए नबी आप कह दीजिए कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो दोनों जहान का पालने वाला है। कुल अर्रहमानिर रहीम, आए नबी कह दीजिए उस अल्लाह के लिए जो बड़ा ही रहम करने वाला, इंतहाई मेहरबान है।
कुल मालिक यौमिद्दीन, ऐ नबी कह दीजिए उस अल्लाह के लिए जो कयामत के दिन का मालिक है। कुल इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह नहीं कह रहा है कि हमको सीधा रास्ता दिखला, बल्कि ऐ नबी तू कह दे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कह अल्लाह हमको सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा, सीधे रास्ते पे चलने की मेरी रहनुमाई फरमा। कुल इहदिना सिरातल मुस्तकीम कुल सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हर आयत से पहले अगर आप लफ्ज़ कुल को साइलेंट मान ले तो कोई एतराज़ ही नहीं, यानी अल्लाह अपने लिए कुछ नहीं कर रहा बल्कि अपने बंदों को सिखला रहा है। जब आप ये मान लेंगे तो सारा एतराज़ खत्म हो गया। तुम्हारे यहाँ तो कुछ भी साइलेंट नहीं माना जाता है, कुछ भी साइलेंट नहीं माना गया, और यहाँ पर एक साइलेंट मानकर हमने उसका हल तो निकाल लिया है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आप गौर करेंगे तो बहुत सी चीजें आपको इस दुनिया के जो है कुरान के अंदर मिलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह की तफसीर ही खत्म नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह की। अरे किस किस पर तुम अल्लाह की तारीफ करोगे? अरे अल्लाह ने दरख्त बनाए कहो अल्हम्दुलिल्लाह, किस्म किस्म की नेमतें तुम्हें दी कहो अल्हम्दुलिल्लाह, सेब खाते हो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अनार खाते हो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, केला खाते हो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, गोश्त तुम्हें मिलता है कहो अल्हम्दुलिल्लाह, मछली खाते हो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, पानी पीते हो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में जितनी भी नेमतें तुम देखते हो, एक एक नेमत पर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते जाओ। कायनात के रब की कसम, दुनिया की नेमतें खत्म हो सकती हैं लेकिन अल्लाह की तारीफ इस दुनिया से मिट नहीं सकती, खत्म नहीं हो सकती। इसीलिए कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का पालने वाला, रब्बुल इंस नहीं कहा, रब्बुल जिन नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, सारी कायनात का पालने वाला है, जो दोनों जहान का पालने वाला है। अरे गौर तो करो कि एक बच्चा जो अपनी माँ के पेट में सांस लेता है, जीता है, वही अल्लाह ताला जिस तरीके से राह में मादर में 9 महीने तक बच्चे की परवरिश करता है। जमीन के अंदर एक दाने को तुम डाल दो तो जमीन के अंदर दाने की परवरिश करने वाला भी वही अल्लाह ताला है। जिस तरीके से माँ के पेट से तुम एक बच्चा पैदा हुआ, गौर करो उसी तरीके से दाना जमीन के अंदर फूटा, फिर एक जो है कल्ला निकला, उसके बाद में पौधा निकला, उसके बाद में हरा भरा हुआ। जानवरों से बचाने के लिए आपने उसका आगे पीछे कांटे लगा दिए, यही के दीवारें खड़ी कर दी, यहां तक कि वो एक दरख्त बन गया। दरख्त बनने के बाद उसमें फल लगने लगे। उसको दाने से लेकर जमीन के अंदर से लेकर ऊपर तक पहुंचाने वाला, मुकम्मल करने वाली जात भी अल्लाह तबारक व तआला की है। जरा गौर करो, एक इंसान कम्युनिस्ट हो या कम्युनिज्म जब इस चीज को देखता है तो उसकी जबान से ला महला ये जुमला निकलता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का पालने वाला है। अरे जरा गौर तो करे इंसान, अभी तो रामे मादर में है, अभी रामे मादर में है, लेकिन माँ की पिस्तान को अल्लाह ताला दूध से पहले भर देता है ताकि ये बच्चा जो पैदा होने वाला है इसको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। डॉक्टर मौजूद होंगे, अतिब्बा मौजूद होंगे, और जाओ दुनिया का कोई डॉक्टर को इस बात का इनकार तो करे कि माँ का दूध बच्चे के लिए कितना मुफीद होता है। डॉक्टर कहते हैं कि तमाम जानवरों से ज्यादा और तमाम मिल्क, हर किस्म के दूध से ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा मुफीद बच्चे के हक में कोई दूध होता है तो वो माँ का दूध होता है। जरा गौर कीजिए कि अभी बच्चा रहमे मादर में है और अल्लाह ताला ने उसकी माँ की पिस्तान में दूध पहले से भर दिया ताकि ये बच्चा रहमे मादर से जब बाहर आए तो फिर उसको किसी किस्म की तकलीफ ना होने पाए। और एक इंसान जब कुदरत के इस ऑटोमेटिक निजाम को देखता है तो ला महला उसकी जबान से ये जुमला निकल ही जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का पालने वाला है। कहां तक इनकार करेगा? कुत्तों की परवरिश भी वो कर रहा है, जानवरों की परवरिश भी वो कर रहा है। वो एक अलग बात है कि आज हमारे कुछ हजरात ऐसे भी हैं, उनसे कहो भाई साहब आप मजार पे जाते हो क्यों? का इसलिए कि कुछ मिल जाता है। का क्या मिल जाता है? का झोला झोली भर के लाते हैं, एक बेटा मिल जाता है। एक मर्तबा जंजीर में डालकर एक कुतिया को ले जाओ मजार पे, कोई पूछेगा भाई क्यों ले जा रहे हो? कह देना यार इसके बच्चे नहीं होते, जा रहा हूं मजार पे वसीला मांगने। हो सकता है कि बड़े पीर साहब इसकी भी दुआ ऊपर तक पहुंचा दें, तो कहेगा नापाक। अरे अल्लाह की रहमत इतनी वसी कि वो कुतियों को भी दे, सुअर को भी दे, घोड़ियों को भी दे, बकरियों को भी दे, औरतों को भी दे, मछलियों को भी दे, दुनिया में जितने भी मखलूक है वो सबको दे। उसकी रहमत इतनी वसी, वो बुरा ना माने, उसके यहाँ कोई नापाक नहीं। गौर तो करो मुसलमानों, तेरी कुतिया जाने से तेरा मजार नापाक हो रहा है तो फिर तेरे पीर की खुसूसियत क्या रह गई औलाद देने में? फिर वो कौन सी जात है जो मछलियों को भी दे सकती है, जो कुतियों की दुआ बगैर वसीले के कबूल कर सकती है, मछलियों की दुआ बगैर वसीले के कबूल कर सकती है, और तमाम मखलूकात की दुआएं बगैर वसीले की जो जात कबूल कर सकती है, वही जात अशरफुल मखलूकात इंसान की दुआ भी कबूल कर सकती है। इसलिए हज़र के सीगे के साथ का इहदिना सिरातल मुस्तकीम,
یہ کہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین حسر کے صیغے کے ساتھ کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. جب آدمی یہ کہہ دیتا ہے تو سارا معاملہ ختم کہ اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی لینے والا نہیں ہے. لوگوں نے جانا نہیں کہ اللہ کون ہے، بس وہ یہ سمجھے کہ 2 رکعت مسجد میں آ کر نماز پڑھ لو، اللہ کا مقصد حل ہو گیا، ہمیں اللہ مل گیا. اگر اللہ سمجھ لے کہ وہی اللہ جو ابراہیم کو آگ سے بچانے والا، وہی اللہ جو اسماعیل کو چھری سے بچانے والا، وہی اللہ جو یعقوب کو یوسف واپس کرنے والا، وہی اللہ جو نمرود کی آگ میں ڈالے گئے ابراہیم تو آگ کو پھول بنا دے، وہی اللہ جو طائف کی وادی میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے کئی بار الہ، اگر آج یہ چند مٹھی بھر جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو اس روئے زمین پر کبھی تیری عبادت نہ ہو سکے گی. اس محمد رسول اللہ کی دعا کو قبول کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالی. اگر انسان یہ سمجھ لے کہ سب کچھ دینے اور لینے والا اللہ ہے تو کائنات کے رب کی قسم شرک اور بت پرستی کا قلعہ کما ہو جائے گا اور آدمی کبھی خرافات میں جانے کا نام نہیں لے گا. لیکن اس کے لیے پہچاننا ضروری ہے کہ اللہ ہے کون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم تم کو آزمائیں گے. مسلمانوں سن لو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں خوف ڈال کر بھی تمہارے اوپر تمہیں آزمائیں گے، خوف ڈال کر بھی آزمائیں گے. جیسے صحابہ کے اوپر اللہ نے خوف ڈالا تھا لیکن ان تمام خوفوں کے اندر وہ مستقل مزاج رہے. دیکھیے ایک موقع پر اللہ کے نبی نے ایک صحابہ میں جلسہ کیا، آپ نے واعظ کیا، آپ نے فرمایا کیا ہے دوستو سنو، اللہ نے جب جہنم کو 1000 سال تک جلایا تو وہ جہنم سرخ ہو گئی، پھر سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا تو وہ سیاہ ہو گئی. پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کو آج بھی چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے. تیرے رب کی قسم، اللہ نے کہا قسم ہے اس کی عزت و جلال کی، اگر اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر سے سوئی کے سورا کے برابر بھی اگر کوئی جگہ کھول دے تو اس سے جو گرمی نکلے گی وہ اتنی گرم ہوگی کہ اس کی گرمی سے جل کر ساری دنیا راکھ ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. آپ نے یہ واعظ کیا، ایک انصاری نوجوان اٹھا اپنے گھر پہ گیا، اپنے گھر والوں سے کہتا یا اللہ بیتی زملونی، اور میرے گھر والوں مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. لوگوں نے چادر اڑا دیا، لوگوں نے کمبل اڑا دیا. وہ انصاری نوجوان اسی کے اندر سوچ رہا ہے کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہوگا، جہنم کے فرشتے کتنے سخت ہوں گے، کیسا کیسا عذاب دیں گے. یہ تمام باتیں وہ انصاری نوجوان سوچ رہا ہے. اس کو نیند کیا آئے گی؟ جس کے دل میں جہنم کا خوف اور ڈر بھرا پڑا ہو، اچانک اس کی زبان سے اسی لحاف کے اندر سے یہ دعا نکلتی ہے، یہ چیخ نکلتی ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اور میرے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا لے، ہم جہنم کو عذاب کو برداشت کرنے کی چھمتا نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے. اتنا کہا اور انصاری نوجوان کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اس دار فانی سے اس کو چلا گیا. اللہ کے نبی کو جب پتا چلا تو آپ نے کہا صحابہ اس کے کفن دفن کی تیاری کرو. اللہ کے خوف نے اس کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کے دل کو چھلنی چھلنی کر دیا. جلد سے اس کو نہلاؤ دھلاؤ، قبرستان کی طرف لے جاؤ. تمہیں نہیں معلوم 70,000 فرشتے اس کے نماز جنازہ کے لیے بیتاب ہیں. ذرا غور کیجیے، اللہ کا خوف ڈال کر جسے صحابہ کو آزمایا تمہیں بھی آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوکا مار کر بھی تمہیں آزمائیں گے. اور یہ بھوک نبیوں پر بھی صحابہ پر بھی. سنو صحابہ کرام کی تعداد 115-16 کی تعداد، سب بھوکے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں 6 دن سے کھانا نہیں کھایا. نبی کا چہرہ دیکھتے دیکھتے میری بھوک مٹ جاتی تھی. ایک مرتبہ دودھ آیا، آپ نے اس دودھ کو تمام صحابہ کو پلا دیا، سب کو پلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں نکلے، حضرت ابو بکر بھی مل گئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی بھوک کی وجہ سے میں گھر سے نکلا. کہا ابو بکر کعبے کے رب کی قسم محمد کا بھی یہی حال ہے، میں بھی بھوک کی بےتابی سے گھر سے نکل گیا. حضرت عمر سے بھی ملاقات ہو گئی. عمر تم کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی رات کی تاریکی ہے، پیٹ میں کوئی چیز نہیں کہ جس کو میں کھا سکوں، بھوک نے مجھے بے چین کر دیا، نکلا. اللہ کے نبی نے کہا میرا بھی وہی حال. تینوں ایسے ہی پہنچے ابو ایوب انصاری کے مکان پر. غور کرو جس طریقے سے میں نے نبیوں کو آزمایا، میں نے صحابہ کو آزمایا. نبی ہیں، رسول ہیں، غور کرو کھانے کے لیے کچھ نہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ 2 ٹائم کا کھانا اللہ کے نبی کو پیٹ بھر کے کبھی نصیب نہیں ہوا، پیٹ بھر کے کبھی نصیب نہیں ہوا. آپ نے ابو ایوب انصاری کے یہاں دیکھا بکری ذبح کر دی گئی، کباب سامنے، قورمہ سامنے، ایک روٹی پہ ایک بوٹی رکھی ہوتا ہے. ابو ایوب